Hello all, I welcome my students to this YouTube platform of mine, Apolitical Science. And today I'm going to discuss on constitutional values and fundamental duties and Indian government and politics, a paper on constitution and social transformation in India. भारत में संविधान और सामाजिक परिवर्तन पे आज हम चर्चा करेंगे. तो अगर स्टूडेंट्स आपका ये पेपर है तो यू कैन रेफर दिस, एंड इफ़ यू हैव येट नॉट subscribe to this channel you may do it, as it would help you in the longer run for your competitive and other higher education as well as for classes also. Though I keep on saying that there is no substitute for classroom teaching, but then those who are not able to come to the class and they are not able to access many times if there is certain problems, so those students and in fact these ppts and discussions helps us to engage with the content throughout. So whenever you want you can connect it. So this is the a benefit of this platform. You don't have to just rely on one content or one platform. You can refer this also. So let us start with the discussion on constitution and social transformation. Now, why constitution is uh, considered to be a medium for transformation, social transformation in India? We need to understand that. And since constitution is the supreme law of land, constitution is powerful not only because it is supreme and sovereign, but also because it has this it is carrying the social document in itself, which has the capability to transform the society. Now, in order to understand deeper, इसको और अच्छे से समझने के लिए ग्रैनविल ऑस्टिन की एक किताब आती है, वो आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं. इनफैक्ट ग्रैनविल ऑस्टिन की दो किताबें हैं, तो आप या तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ अ नेशन, वो, या वर्किंग इन अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ये दोनों में से कोई भी रेफ़र कर सकते हैं. और क्योंकि डी बासु और सुभाषी कश्यप भी मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स को सीवीसी के लिए, और और जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर है डेमोक्रेसी का, या आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से है, इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स से है, तो आप कोई भी अगर इस तरह का आपका पेपर है तो आप ये रेफ़र कर सकते हैं दो किताबें. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, as you all know, it was adopted in 1950. It stands as a testament to the nation's commitment to social transformation. It embodies the aspirations of a newly independent nation striving for justice, liberty, equality, and fraternity. This discussion tries to understand the key aspects of the Constitution, exploring its impact on shaping Indian society and its ongoing relevance in understanding contemporary challenges, from fundamental rights to directive principles. We will try to understand the transformative power of the foundational document. Now, why we say that it is a foundational document? Because it is carrying the basic idea of the preamble also. So, the constitution is a legal political document that outlines the structure of power and obligations of rulers towards the ruled. It is a future oriented and is often framed following a revolution. And this whole idea is referred in these books which I told you. The first written constitution in the 18th century was of the United States, which later expanded on rights through welfare and socialistic approaches. 1950 में अपनाया गया भारतीय संविधान सामाजिक परिवर्तन के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का प्रमाण है.
यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के लिए प्रयासरत एक नव स्वतंत्र राष्ट्र की आकांक्षाओं का प्रतीक है। यह जो हमारा आज का जो चर्चा हम कर रहे हैं वो संविधान के प्रमुख पहलुओं पर प्रकाश डालती है। भारतीय समाज को आकार देने पर इसके प्रभाव, समकालीन चुनौतियों से जूझने के लिए इसकी क्या प्रासंगिकता है, मौलिक अधिकारों से लेकर नीति निर्देशक जो सिद्धांत हैं, हम इस मूलभूत दस्तावेज की परिवर्तनकारी शक्ति को हमें समझने की ज़रूरत है। संविधान एक कानूनी राजनीतिक दस्तावेज है जो शासितों के प्रति शासकों की शक्ति और दायित्वों की संरचना को रेखांकित करता है। यह भविष्य उन्मुख है और अक्सर एक क्रांति के बाद तैयार किया जाता है। 18वीं शताब्दी में पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका का था, जिसने बाद में कल्याण और समाजवादी दृष्टिकोण के माध्यम से अधिकारों का विस्तार किया। अब हम अगर इसका आउटलुक देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, तो इसके बहुत सारे फीचर्स हैं। आपने फीचर्स भी पढ़े होंगे कि संविधान के क्या क्या फीचर्स हैं। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ यूनिक। वाई? बिकॉज इट इज़ द ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सिर्फ रिजिड है या फ्लेक्सिबल है ऐसा हम नहीं कह सकते, दोनों ही है। देन इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन of any sovereign nation, reflecting the diverse needs and aspirations of its people. Now, its federal structure balances the powers of the central government with those of the states, while its parliamentary system ensures democratic accountability. The Indian Constitution established a republican democracy promoting social reform and welfare, and it also talked about the freedom struggle experiences. It prohibited state violations, untouchability, and also carried with it the welfare measures, adopting the आयशिया मॉडल। जब कहते हैं कि आयरिश मॉडल भी इसने जो है अडॉप्ट किया था। आयरिश मॉडल अडॉप्ट जो किया है उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वहाँ से उसने लिया है। तो और भी बहुत सारे आधार हैं जो संविधान के हमने अलग अलग जो है राष्ट्रों से हमने बोरो किया है। और क्योंकि संविधान का जो आधार है वो मिक्स रहा है, तो इसमें हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो भारतीय संविधान है उसके प्रमुख जो फीचर्स हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या हैं और ऐसे क्यों हैं, इसके पीछे कारण क्या है। सिर्फ और सिर्फ हम फीचर्स नहीं पढ़ेंगे, साथ के साथ उसके रीजंस भी हमें समझना पड़ेगा। और अगर हमारे पास कोई उदाहरण है तो हम उदाहरण भी दे सकते हैं। जैसे हम कहते हैं कि संविधान जो है इट वाज फ्रेम्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। नाउ व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? इट इज़ अ बॉडी इलेक्टेड बाय प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स। The drafting process, spanning nearly 3 years, involved intense debates and deliberations. संविधान का जो निर्माण हुआ वो संविधान सभा द्वारा किया गया था, जो प्रांतीय विधायिकाओं के द्वारा चुनी गई संस्था थी। और इसमें काफ़ी समय लग गया ये सारे डिबेट्स वगैरह में। एडॉप्शन की प्रक्रिया 26 नवंबर को हुई 1949 में, और 26 जनवरी को 1950 में संविधान जो है इट केम इनटू फोर्स। अमेंडमेंट्स की अगर हम बात करें, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड ओवर 100 टाइम्स, reflecting its adaptability to changing social and political contexts. This demonstrates the dynamic nature of this document, allowing it to remain relevant in contemporary times. अब क्योंकि समय, परिस्थितियाँ, राजनीतिक परिवेश और माहौल बदलते रहते हैं, और कई बार जो है व्यक्ति के विचार, विचारधाराएं, माइंडसेट, इस तरह की जो न्यू हम कह सकते हैं आइडियाज़ हैं उनका भी जन्म होता है। तो कहीं ना कहीं उनको भी ध्यान में रखते हुए ज़रूरी है कि कई बार अगर ऐसे सब्सटैंटिव बदलाव की ज़रूरत पड़ती है तो संविधान उसके लिए भी कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को अडॉप्ट कर लेता है। हालांकि इसमें ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैंने बार बार कहा भी है क्लास में कि बेसिक स्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट है।
जो संविधान का मूल ढांचा है वो ना बदला जाए, क्योंकि अगर हम हर दिन इसमें बदलाव करेंगे तो जो संविधान की सैंक्टिटी है वो कहीं ना कहीं रेलेवेंट नहीं रहेगी। तो सैंक्टिटी को रेलेवेंट रखने के लिए बहुत ज़रूरी है जो भी सकारात्मक और तात्विक बदलाव किए जाने हैं और वो ज़रूरी हैं, वो सोच समझ के डेलिब्रेशंस के आधार पर थोड़ा समय लेके उसे किया जाना चाहिए। देन द प्रियम्बल, जिसे हम बहुत इम्पोर्टेंट मानते हैं, वो प्रस्तावना जो है कैसे इम्पोर्टेंट है। तो preamble, it's a vision for India. The preamble to the Indian constitutions encapsulates the fundamental values and objectives of the nation. It declares India a sovereign, socialist, secular, democratic and republic committed to securing justice, liberty, equality and fraternity for all its citizens. The Indian constitution adopted by the Constituent Assembly is a democratic sovereign republic and does not recognize any hereditary rule. Republic means it does not recognize any hereditary rule. Then it guarantees citizens the right to elect the first chambers of the Union Parliament and state legislative assemblies, justice, liberty, equality, and fraternity. Now, since we are talking about the preamble, now the preamble has all the important keywords mentioned in it. Now, as far as the constitutional values paper is concerned, in the first unit we have to go through all the conceptual framework, for example the rule of law, democracy, republic and all. And in the second one we have to go through the constitutional values, and in the third one we have to go through the ancient roots of the constitution, and then the fundamental duties, the different fundamental duties, its importance, and then the legal approach towards that, how far it is justiciable or the changing context. Now, when we are talking about the preamble, all of us know that in the preamble there are various words which are mentioned and they are very important. Many words, for example, socialist and secular, they were added by the 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Now, why they were added, it is very important to understand, and what was the main idea behind adding them. So, for example, if we talk about the socialist idea, the state aims to reduce inequalities and ensure social and economic justice. राज्य का लक्ष्य असमानताओं को कम करना और सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना है। तो क्योंकि इंडिया ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया और अपना शुरुआत में जो कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो रुझान था या फिर जो इंक्लिनेशन था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन के तरफ ज़्यादा रहा, बट इंडिया क्योंकि एग्रीरियन इकोनॉमी है, आज भी 67 से 68% की आबादी गाँव में रहती है और उनके नीड्स को कहीं ना कहीं फुलफ़िल करने के लिए बहुत ज़रूरी था कि इंडिया जो है सिर्फ कैपिटलिस्ट ओरिएंटेड ना हो बल्कि सोशलिस्ट ओरिएंटेड, वेलफेयर ओरिएंटेड हो, इसीलिए सोशलिज्म का नीड फील किया। और आप पे जितने सोशलिस्ट रिलेटेड आइडियल्स हैं, गोल्स हैं, प्रावधान है, वो आपको डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिल जाएंगे, जो आर्टिकल 37 से है आर्टिकल 51 तक। हम आगे भी जाएंगे इसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जब मैं बात करूँगी। अब जो सेक्युलरिज्म अगेन ये भी ऐड हुआ 42nd में, क्यों जो है द स्टेट शुड नॉट प्रमोट एनी और डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी रिलीजन, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम सर्वधर्म समभाव की विचारधारा की बात करते हैं, भावना की बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की भावना की बात करते हैं। तो इसलिए इसमें जो ये धर्मनिरपेक्षता वाले जो शब्द हैं वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। देन the rise of the people. The Indian Constitution empowers the people as the ultimate source of authority. Now, it establishes a democratic system where citizens they have the right to vote and participate in the political process. The principle of universal adult suffrage ensures that every adult citizen has the right to elect their representatives regardless of their background. This slide tries to explore how the constitution facilitates the rise of the people and their role in shaping the nation's destiny. भारतीय संविधान लोगों
को अधिकार के अंतिम स्रोत के रूप में सशक्त बनाता है। यह एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करता है जहां नागरिकों को वोट देने और राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार है। सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार का सिद्धांत यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वैश्विक नागरिक को अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। तो इस स्लाइड में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे संविधान लोगों के उत्थान और देश की नियति को आकार देने में उनकी भूमिका को समझने में, सुगम बनाने में हम मदद करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो लोगों का जो उदय है या लोगों का जो मोबिलाइजेशन है, लोगों की कंसर्न को सुनने की बात है संविधान के अंतर्गत, तो बहुत सारे ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिसमें फंडामेंटल राइट्स भी हैं और भी सारे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे, जो कहीं ना कहीं लोगों को वो पावर देता है। तो उसमें यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, जिसे हम सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिस जो आर्टिकल अगर हम 324 देखें तो ये पूरा मेंशन करता है। चुनावी प्रक्रियाएं जो हैं निरंतर होनी चाहिए, सुनिश्चित उनके नियमित नियम द्वारा उनको करवाने को सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। नागरिक अपने प्रतिनिधित्व को लेके आएंगे, उनका उनका चयन करेंगे और इससे एक पारदर्शिता बनी रहेगी पूरे सिस्टम में, एक जवाबदेही होगा लोगों के प्रति। किस तरह से जो है सिविल सर्वेंट्स हैं या जो सरकारें हैं वो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होंगी लोगों के प्रति, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे लोगों का महत्व जो है और बढ़ जाता है। अगर हम मौलिक अधिकार की बात करें तो यह अधिकार व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है और एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज सुनिश्चित करने में मदद करता है। अब जैसे हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं और मैंने अभी बताया भी, तो फंडामेंटल राइट्स इट इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल लिबर्टीज। The Constitution guarantees fundamental rights to all its citizens, safeguarding their basic freedoms. These rights they include equality rights, freedom of speech expression, right to life, personal liberty, right to freedom of religion, and they are essential part and parcel of society. The Indian Constitution grants two types of rights, some to all persons and some to citizens. Non citizens have the rights like equality before the law, protection against unlawful conviction, life and personal liberty, and freedom of religion, whereas citizens have rights like rights against discrimination, equality in public employment, and freedom of speech and expression. तो जो संविधान है वो सभी नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है, उनकी बुनियादी स्वतंत्रता की रक्षा करता है। यह अधिकार जिनमें समानता का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार शामिल है, एक न्याय संगत और न्याय संगत समाज के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान दो प्रकार के अधिकार प्रदान करता है, कुछ सभी को व्यक्तियों को और कुछ नागरिकों को ही। तो गैर नागरिकों को कानून के समक्ष समानता, गैर कानूनी सज़ा के खिलाफ सुरक्षा, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त होते हैं। नागरिकों को भेदभाव के खिलाफ, सार्वजनिक रोजगार में समानता और बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे अधिकार प्राप्त हैं। तो हम इसे राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत देख सकते हैं, जो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक है। राइट टू फ्रीडम जो आर्टिकल 19 से 22 है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन जो आर्टिकल 23 और 24 है। अब हम आते हैं जो नेचर है, जो इसकी प्रकृति है, अधिकारों की प्रकृति है, किस तरह से बिहेव करते हैं, क्या बिहेवियर पैटर्न है। तो द नेचर ऑफ राइट्स इन इंडिया इज नेगेटिव and basically the fundamental rights, they are negative in nature. Why? Because they restrict the authorities, whether it is state or any bureaucrat, from violating them. Most rights are against the state, but some like the right against untouchability and the right to protect minorities are against society. Now राज्य के विरुद्ध अधिकार, समाज के विरुद्ध अधिकार. Most rights are granted to individuals, but some are granted to groups.
Most rights are conditional upon public interest, law and order, decency, and welfare of certain sections of society. Contrary, in India, the practice of untouchability by upper caste and the violation of minority rights by majority community members are directly against the Constitution. The Constitution of India specifies limits of rights, limiting personal views and focusing on public interest, decency, morality, and welfare of weaker sections. The recognition of groups and individuals is a result of the country's unhappy communal history, reminiscent of European constitutions set up between world wars. भारत में अधिकारों की प्रकृति नकारात्मक रही है, जो अधिकारों को उनका उल्लंघन करने से रोकती है। अधिकांशतः अधिकार राज्य के विरुद्ध हैं, लेकिन कुछ जैसे अस्पृश्यता के विरुद्ध अधिकार और अल्पसंख्यकों की रक्षा का अधिकार वो समाज के विरुद्ध हैं। अधिकांश अधिकार व्यक्तियों को दिए जाते हैं, लेकिन कुछ अधिकार समूह को भी दिए जाते हैं। अधिकांश अधिकार सार्वजनिक क्षेत्र, कानून और व्यवस्था, शालीनता और समाज के कुछ कमज़ोर वर्गों के कल्याण पर आधारित है। इसके विपरीत भारत में ऊंची जातियों द्वारा छुआछूत की प्रथा और बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों द्वारा अल्पसंख्यकों के अधिकारों का उल्लंघन सीधे तौर पर संविधान के विरुद्ध है। भारत का संविधान अधिकारों की सीमाएं निर्दिष्ट करता है, व्यक्तिगत विचारों को सीमित करता है और सार्वजनिक हित, शालीनता, नैतिकता और कमज़ोर वर्गों के कल्याण पर ध्यान केंद्रित करता है। समूहों और व्यक्तियों की मान्यता देश के दुखद सांप्रदायिक इतिहास का परिणाम है, जो विश्व युद्धों के बीच स्थापित यूरोपीय संविधानों की याद दिलाती हैं। Then directive principles of state policy. These are the guiding principles for governance, and these guidelines for the state, they are in the form of guidelines or positive instructions for the state to ensure social and economic justice. Though they are not legally enforceable, they are fundamental in the governance of the country, and they aim to create a welfare state. They cover a wide range of areas, from providing adequate means of livelihood to promoting international peace and security. The Indian Constitution assigns a direct active role to the state in bringing about socio-economic transformation through the directive principles of state policy that we often say DPSPs. These principles are not directly enforceable by law, courts, but they are guided by them when interpreting the Constitution. The state is obliged to regard these principles as fundamental in governance and apply them when making laws. The most fundamental directive is to secure a social order where justice, social, economic, and political inform all institutions of national life. The state must minimize income inequalities, eliminate inequalities of status, and ensure equal pay for equal work. The state must also secure a uniform civil code, separate the judiciary from the executive, and organize village panchayats. The state must also ensure just and human conditions of work, maternity relief, and protection for children and weaker sections. अब हम अगर देखते हैं तो ये जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं, जिसे हम DPSP भी कहते हैं, ये राज्य के लिए सामाजिक और आर्थिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए दिशा निर्देश देते हैं। हालांकि कानूनी रूप से ये लागू करने योग्य नहीं है, परंतु फिर भी वे देश के शासन में मौलिक हैं और एक कल्याणकारी राज्य बनाने में हमारी मदद करते हैं और उसका लक्ष्य रखते हैं। वे आजीविका के पर्याप्त साधन उपलब्ध कराने से लेकर अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने तक कई क्षेत्रों को कवर करते हैं। भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के माध्यम से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में राज्य को प्रत्यक्ष सक्रिय भूमिका प्रदान करता है। यह सिद्धांत कानून अदालतों द्वारा सीधे तौर पर लागू तो नहीं होते, लेकिन संविधान की व्याख्या करते समय उनके द्वारा निर्देशित होते हैं। राज्य इन सिद्धांतों को शासन में मौलिक मानने और कानून बनाने समय उन्हें लागू करने के लिए बाध्य है। सबसे मौलिक निर्देश एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित करता है जहाँ न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्र जीवन की सभी संस्थाओं को सूचित करे। राज्य को आय असमानताओं को कम करना चाहिए, स्थिति की असमानताओं पर काम करना चाहिए, वेतन सुनिश्चित करना चाहिए, राज्य को समान नागरिक संहिता भी सुनिश्चित करनी चाहिए, न्यायपालिका को न्याय
को कार्यपालिका से अलग करना चाहिए और ग्राम पंचायतों का आयोजन करना चाहिए। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहीं ना कहीं एक सामाजिक न्याय करने में और जो आर्थिक स्तर पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको लाने में और कहीं ना कहीं पर्यावरण की रक्षा करने उनको सुनिश्चित करने में हमारी मदद करते हैं। अब जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो फोकस एरिया रहा है, फोकस क्या रहा है, तो द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑल्सो एड्रेस specific areas that are crucial for social transformation. Now, this includes providing a UCC, promoting the educational and economic interests of the deprived sections, including scheduled caste, scheduled tribes, and other weaker sections, and organizing village panchayats. नीति निर्देशक सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन के लिए महत्वपूर्ण विशिष्ट क्षेत्रों को भी संबोधित करते हैं। इसमें समान नागरिक संहिता प्रदान करना, अनुसूचित जाति जनजाति और अन्य कमज़ोर वर्गों की शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना और ग्राम पंचायतों का आयोजन करना शामिल है। अब अगर हम देखते हैं तो जैसे मैंने बताया कि आर्टिकल 40 कहता है एम्पावर द लोकल सेल्फ गवर्नेंस, स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना है। एजुकेशन आर्टिकल 45 में देख सकते हैं प्रमोटिंग फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को बढ़ावा देना। उसी तरह से हम हेल्थ केयर 46 या 47 में हम देख सकते हैं इम्प्रूविंग पब्लिक हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज। Now when we compare both the fundamental rights, which has fundamental rights, it carries with it the individual liberties. It's an instrument of freedom, speech, expression. Now when we're talking about the social transformation, now directive principles of state policy has that particular content and it has that objective of doing. So when we combine both, we find how we can um, totally transform the society through both the directive principles as well as the fundamental rights. Now, the Indian Constitution continues to be a living document. It is a social document, as Granville Austin also acknowledges, now adapting to the changing needs of Indian society. The principles of justice, liberty, equality, fraternity remain central to the nation's progress. The Constitution provides a framework for addressing contemporary challenges and shaping a more inclusive and equitable future for all citizens. तो भारतीय संविधान आज के संदर्भ में काफ़ी सार्थक है, काफ़ी समसामयिक है और क्योंकि ये इतने सारे संवैधानिक मूल्यों को साथ लेके चलता है जिसमें हम जो है स्वतंत्रता की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, भाईचारा की बात करते हैं, जो राष्ट्र के जो है स्टेबल नींव को रखने में काफ़ी सक्षम हैं और ये आगे बहुत कहीं ना कहीं राष्ट्र को सशक्त करते हैं और लोगों को, नागरिकों को सशक्त करते हैं। तो जस्टिस में बहुत सारे फैसेट्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, ये सारे हमें पढ़ने हैं और सब कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के अंदर है। आप इनके डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ना चाहते हैं तो आप सुभाषी कश्यप आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेफ़र कर सकते हैं। लिबर्टी में जैसे थॉट के लिए, एक्सप्रेशन के लिए बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, स्थिति और अवसर की समानता और दूसरा फेटर्निटी। हालांकि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी मेंशन ही है आर्टिकल 16 के, पूरा 16 क्लॉज ABCD आप रेफ़र कर सकते हो, उसमें आपको मिल जाएगा। फ्रेटर्निटी की जब हम बात करते हैं तो जिसमें यहाँ पे डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल यू कैन टॉक अबाउट इन द राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आर्टिकल 21 एंड देन यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, जो कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ का पार्ट है। तो हमें अपने प्रियम्बल में जो ये शब्द मेंशन है ये भी हमें देखने हैं क्योंकि ये सब प्रियम्बल में मेंशन है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है वो प्रियम्बल में मेंशन है। तो आशा है आपको जो आज का हमारा डिस्कशन है पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पे, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पे आपको समझ में आया होगा, आप कनेक्ट कर पा रहे होगे। ये चाहे आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ के पेपर रेफ़र कर रहे हो या भारतीय शासन का पेपर, इग्नू में भी एक पेपर है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट पे, और भी अन्य पेपर्स, UPSC कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स,
सभी के लिए ये टॉपिक कॉमन है, दैट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. So please refer and subscribe this channel and like, share, comment. Thank you. Have a nice day.